ملک ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857 سنی عیسوی میں لڑی گئی۔ انگریزوں کی غلامی سے اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں یعنی خواتین بھی میدان جنگ میں آ گئی تھیں۔ ہندوستان کی ان بہادر عورتوں میں سے ایک نام بیگم حضرت محل کا آتا ہے۔ آزادی کے لیے جن لوگوں نے اپنا خون بہایا اور تخت و تاج چھوڑا، ان میں سے ایک عظیم نام، ایک عظیم ہستی بیگم حضرت محل کی ہے۔ ناظرین السلام علیکم، آداب، میں آپ کا دوست یار محمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری سر آن لائن کلاسز۔ آج کے اس سبق میں 7ویں جماعت کے اردو کتاب فروزہ کا سبق 16 لے کے آئے ہیں، جس کا عنوان ہے بیگم حضرت محل۔ اس زمانے میں جب گھر سے عورتوں کا نکلنا بھی منع تھا، بیگم حضرت محل نے اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے یہ نہ صرف کہ گھر سے باہر نکلی بلکہ انگریزوں کے خلاف جنگ میں مردوں کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ بیگم حضرت محل اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کی بیگم تھیں۔ وہ فیض آباد کے غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں اور آپ کے والد والدہ نے آپ کا نام امراؤ رکھا۔ جب وہ لکھنؤ آئیں تو واجد علی شاہ کی بیگم بنی۔ نواب واجد علی شاہ اودھ کے تخت پر بیٹھتے ہی امراؤ کو حضرت محل صاحبہ کا خطاب دیا۔ ناظرین، اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل یعنی انصاری سر آن لائن کلاسز کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے، اور اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر دیں گے، لائک ضرور کریے گا۔ آئیے ابھی سبق کے حوالے سے کن کن موضوعات پہ گفتگو کرنے والے ہیں، پہلے وہ آپ کو واضح کرا دیں۔ تو اس میں آپ سب سے پہلے بیگم حضرت محل عنوان کے متعلق مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے، ساتھ ہی سوچئے اور بتائیے میں جو سوال و جواب ہیں۔ بیگم حضرت محل کون تھیں؟ اودھ کے جنگ آزادی میں عورتوں کا کیا حصہ ہے؟ بیگم حضرت محل لکھنؤ چھوڑ کر نیپال کیوں گئی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں کیوں قائم کی گئی؟ اس کے علاوہ واحد الفاظ کی جمع لکھیے، ان لفظوں کی ضد لکھیے، ان لفظوں سے جملے ترتیب دیجیے، ان سوالوں کی بھی جواب لکھنے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے واجد علی شاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اودھ کو آزاد کرانے کے لیے بیگم حضرت محل نے کن کن لوگوں سے مدد لی؟ تیسرے سوال کے مطابق ایسی دو مثالیں دیجیے جن سے بیگم حضرت محل کی بہادری اور حب الوطنی کا پتہ چلتا ہو۔ خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ خود کرنے کے لیے عملی سرگرمی کے طور پہ ہیں۔ پہلی جنگ آزادی کے 5 شہیدوں کی تصویریں اپنے اسکریپ بک میں جمع کیجیے اور ان کے نام لکھیے۔ ساتھ ہی بیگم حضرت محل کی طرح ایک بہادر خاتون کی جنگ آزادی میں حصہ لیا اور ان کا نام رانی لکشمی بائی تھا۔ لکشمی بائی کے زندگی کے بارے میں 10 سطریں لکھیے۔ لیجئے ناظرین، پیش ہے 7ویں جماعت کی اردو کتاب فروزہ کا سبق 16، جس کا عنوان ہے بیگم حضرت محل۔ بیگم حضرت محل کے حوالے سے آپ نے ویڈیو کے شروع میں مختصر تعارف دیکھا۔ اب آئیے ہم اس مضمون کے حوالے سے تمام سبق کے تمام پہلوؤں کو جانتے ہیں اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور تمام تر سوالات و جوابات کی جواب اس میں شامل کرنے والے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے، اور ہم نے ملک کی آزادی کے متعلق تو بارہا بہت سارے تواریخ کے متعلق پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ مردوں کے علاوہ جب عورتوں کی بات کی جائے تو اس کی صف میں رضیہ سلطان، لکشمی بائی اور دیگر انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کو لے کے جو ہمارے وطن کوششیں رہی ہیں، ان میں جو اہم کردار ہے وہ بیگم حضرت محل کا ہے۔ اس کے حوالے سے اب بہت خاص چیزیں جان پائیں گے جو اب تک آپ نے اس نصاب کے متعلق یا دیگر کتابوں کے حوالے سے نہیں سنا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیے گا پورا، یقینی طور پہ آپ بیگم حضرت محل کے حوالے سے تمام تر واقفیت حاصل کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ آزادی کے درمیان جو واقعات پیش رہے ہیں، کس طریقے سے حکمرانوں کو نظر بند کیا گیا، ان کو تمام تر اذیتیں تکلیفیں دی گئی، اس کے حوالے سے بھی آپ یہ مضمون سماعت کریں۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر دیجیے گا، لائک ضرور کریے گا، اور اگر آپ کی کسی طرح کی کوئی مشورہ ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ آپ یہ کو یقیناً صحیح راہ ہموار کی جائے گی۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تاخیر کے، اب بیگم حضرت محل کے حوالے سے یہ مضمون آپ کے درمیان۔
हिंदुस्तान की पहले जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से अपने वतन को आज़ाद कराने के लिए मर्दों के साथ साथ औरतें भी मैदान जंग में आ गई थीं। हिंदुस्तान इन बहादुर औरतों में से एक हिंदुस्तान की इन बहादुर औरतों में से एक नाम बेगम हज़रत महल का था। बेगम हज़रत महल अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थीं। वह फैज़ाबाद के एक गरीब खानदान घराने में पैदा हुई थीं। माँ बाप ने उनका नाम उमराव रखा। उनका बचपन फैज़ाबाद में गुजरा। जब वह लखनऊ आईं तो वाजिद अली शाह की बेगम बनी। वाजिद अली शाह अवध के तख्त पर बैठते तो उन्होंने अपनी चहेती बेगम को हज़रत महल साहिबा का खिताब दिया और उनके बेटे बरजेस कद्र को अपना वली अहद करार दिया। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की थी। आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनी हुकूमत के कामों में दखल देने लगी। हर रियासत में उनका एक नुमाइंदा रहता था। अवध में हुकूमत का सारा इंतज़ाम धीरे धीरे कंपनी के नुमाइंदे ने अपने हाथों में ले लिया। आखिरकार कंपनी की हुकूमत ने वाजिद अली शाह को तख्त से उतारकर कोलकाता में नज़रबंद कर दिया और अवध पर पूरा कब्ज़ा कर लिया। उस वक्त अवध में ऐसे बुलंद हौसला लोग बहुत कम थे जो कंपनी के खिलाफ उठते और बादशाहत को वापस लाने की हिम्मत करते। मगर बेगम हज़रत महल की चुपके नहीं बैठ सकी। उन्होंने अपने बेटे को तख्त पर बिठाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अंग्रेज़ी फ़ौज से मुकाबला करने के लिए उन्होंने दिल्ली के ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र, नाना साहब पेशवा और मौलवी अहमदुल्ला शाह से मदद मांगी। अहमदुल्ला शाह की मदद से उन्होंने 11 दिन के अंदर अवध को अपने कब्ज़े में कर लिया। ये एक बड़ी कारकर्दगी थी जो ख़वातीन के हवाले से ऐसा बारहा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बेगम हज़रत महल ने वो कर दिखाया जिसकी निशानदेही या जिसका अंदाज़ा भी नहीं था। बेगम हज़रत महल बहुत ही सरगर्म खातून थीं। उन्होंने महल के औरतों का एक फ़ौजी गिरोह तैयार किया था। महल की लौंडियाँ बांदियाँ उनकी निगरानी में रोज़ कवायद किया करती थीं। उन्होंने जासूस औरतों की भी एक जमात तैयार की थी। बेगम हज़रत महल जंग के मुख्तलिफ मोर्चों पर आम फौजियों के साथ शरीक होकर जंग करती थीं। उनकी मौजूदगी की वजह से आज़ादी के मतवालों का जोश बढ़ता गया। इस तरह पौने 2 बरस तक अवध की आज़ादी की जंग जारी रही। अंग्रेज़ी फ़ौज के जनरल ऑटरम ने पैगाम भिजवाया कि अगर बेगम जंग रोक कर माफ़ी नामा दाखिल कर दें तो कंपनी की तरफ से बुरजेस कद्र की तख्त नशीनी पर गौर किया जाएगा। गैरतमंद और खुददार बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और जंग जारी रखी। इसी ज़माने में इंग्लिस्तान की मलिका विक्टोरिया ने आम ऐलान किया कि जो हुक्मरान और फ़ौजी रहनुमा माफ़ी मांग लें उनकी जान बख्श दी जाएगी। बेगम हज़रत महल ने अपने सिपाहियों को जमा किया और जोश से भरी एक तकरीर की और कहा, मलिका विक्टोरिया की ये बात से धोखे में न आए, आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखें। लेकिन किस्मत ने हज़रत महल का साथ न दिया। अंग्रेज़ों के मुकाबले में हर जगह हिंदुस्तानियों को शिकस्त हो रही थी। जंग आज़ादी के सब रहनुमा एक एक करके तो मारे जा चुके थे या गिरफ्तार हो रहे थे। ऐसी हालत में अकेली हज़रत महल के लिए अंग्रेज़ों का मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। वह अपने वफादार साथियों को लेकर लखनऊ से नेपाल की तरफ रवाना हो गई। नेपाल के राजा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बेगम की मदद करने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना किया कि बेगम हज़रत महल और उनके बेटे बुरजेस कद्र को पनाह दे दी, मगर बेगम के साथियों को नेपाल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली। थोड़ी ही दिन में वह सब तितर बितर हो गए। बेगम हज़रत महल के लखनऊ छोड़ते ही अवध पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। जल्द ही अंग्रेज़
सारे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। इस मौके पर बेगम हजरत महल को भी माफ़ी का परवाना भेजा गया और कहा गया कि वह फैज़ाबाद, लखनऊ या जहाँ जी चाहे रह सकती हैं, लेकिन जिस वतन में आज़ाद रहकर ज़िंदगी गुजारी थी, वहीं जाकर ग़ुलामी की फ़िज़ा में सांस लेना बेगम हजरत महल ने पसंद नहीं किया। नेपाल ही में गुमनामी की ज़िंदगी गुजार कर इंतकाल किया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक वीरान से गोशे में बेगम हजरत महल की कब्र है, जो देखने वालों को आज भी उस पहली जंग आज़ादी की कहानी सुनाती है और बताती है कि मादरे हिंद की बेटियां भी खुददारी, बहादुरी और अज़्म इस्तक़लाल में किसी से कम नहीं होती। तो इस तरीके से आपने बेगम हज़रत महल के हवाले से मज़मून देखा, जिसमें बड़ी ही बहादुरी, दिलेरी से उनके तमाम हयाती ख़िदमात को पेश किया गया है। अब उम्मीद करते हैं इस हवाले से आपने बेगम हज़रत महल के मुतालिक बहुत सारी मालूमात फ़राहम की, हासिल की। अब आइए तमाम तर चीज़ों को देखने के लिए आप इस सबक के हवाले से देख रहे हैं मुश्किल अल्फाज के माने, उसका गौर करने की बातें, सोचिए और बताइए में सवाल और जवाब पूछे गए हैं। वाहिद से जमा, इन अल्फाज की ज़िद, इन अल्फाज से जुमले बनाइए, सवालों के जवाब दीजिए, खाली जगहों को पुर करना है। उसके बाद फिर मारूफ़ के मुतालिक बयान किया गया है कि वैसे वह जुमला जिसमें फ़ाइल तो आया हो, लेकिन फ़ाइल का जो असर है वो ख़ुद हासिल ना करके बल्कि दूसरे पर असर डालता हो। जैसे अहमद ने नौकर को मारा, तो अहमद तो यहाँ फ़ाइल है, काम करने वाला है, करता है, सब्जेक्ट है, लेकिन इसका असर जो है ख़ास तौर पे नौकर पे है। तो इस तरीके से भी ये फ़ेल मारूफ़ के हवाले से आप जानेंगे। ख़ुद करने के लिए है, पहली जंग आज़ादी के 5 शहीदों की तस्वीरें अपनी स्क्रैप बुक में जमा कीजिए। उसके बाद है और इनके नाम लिखिए। बेगम हज़रत महल की तरह इन बहादुर ख़ातून ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई था। लक्ष्मीबाई की ज़िंदगी के बारे में 10 सतरें लिखिए। इन सब के अलावा जो हम वीडियो के हवाले से सबसे पहले आपके दरमियान ख़ास तौर पे लाते हैं, वो है सबक का खुलासा, जो कि तमाम सबक को पूरे टफ़ सिचुएशन जिसको कहते हैं, मुश्किल सबक को भी हम सहल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए बगैर किसी तमहीद के सबक 16 बेगम हज़रत महल का खुलासा देखते हैं। इससे पहले फिर आपसे एक बार गुजारिश है कि अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्लीट वीडियो को देखिए। हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से अपने वतन को आज़ाद कराने के लिए मर्दों के अलावा बहादुर ख़वातीन ने भी नुमायाँ किरदार अदा किया था। फिर आगे देखते हैं कि बेगम हज़रत महल की पैदाइश फैज़ाबाद के गरीब घराने में हुई थी। ठीक है, इस सबक के हवाले से हमें मालूम हुआ। बचपन का नाम उनका उमराव था। लखनऊ आमद पर बेगम हज़रत महल अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह से उनकी बेगम यानी मलिका बनी, शाह की बेगम थी। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह ये लखनऊ के आखिरी बादशाह थे, नवाब थे। बेगम हज़रत महल को नवाब वाजिद अली शाह हज़रत महल साहिबा के खिताब दिया। ठीक है, यानी कोई सवाल अगर आपसे पूछें कि बेगम हज़रत महल की पैदाइश कहाँ हुई, तो फैज़ाबाद जो मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश का अयोध्या ज़िला कहलाता है, मंडल है, उसी के अंदर आता है। इसके अलावा वो कहाँ आ गई, तो फिर लखनऊ आई और नवाब वाजिद अली शाह की मलिका यानी बीवी बनी। इसके बाद अगले सब मरहले में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। रफ्ता रफ्ता ये कंपनी हुकूमत के कामों में दखल देने लगी। अवध में हुकूमत का सारा इंतज़ाम वाजिद अली शाह के तख्त से उतार कर कोलकाता में कंपनी के नुमाइंदों ने नज़रबंद कर दिया। फिर इनको क्या हुआ कि इनको नज़रबंद भी कर दिया गया। तमाम हुकूमत को जिस तरीके से जिम्मेदारियां दी जा रही थी, उस तरीके से नज़रबंदी का भी इनको तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। ठीक है, इसके बाद अगली इसी सब मरहले के में देखते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह के नज़रबंद होने के बाद बेगम हज़रत महल ने अपने बेटे को तख्त पर बिठाया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। ठीक है, अब है अवध के इक़्तिदार को हासिल करने के लिए उन्होंने दिल्ली के ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र, नाना साहब पेशवा और मौलवी अहमदुल्ला शाह से मदद ली। महज 11 दिनों के अंदर ही अवध को अपने कब्ज़े में कर लिया। उसके बाद है
बेगम हज़रत महल ने औरतों का एक फ़ौजी दस्ता और जासूस औरतों का एक जमात तैयार कर रखा था। उनकी निगरानी में बहुत सी औरतें मर्दाना लिबास पहनकर आम फौजियों के साथ मिलकर जंग किया करती थीं। फिर इसी मरहले अगले मरहले के एतबार से देखते हैं इस सबक में, अंग्रेज़ फ़ौज के जनरल ऑट्रम और मल्लिका विक्टोरिया के ज़रिए ये शर्त भी रखी गई कि अगर कोई हुक्मरान या फ़ौजी रहनुमा माफ़ीनामा दाखिल कर दे तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। उसके बावजूद भी बेगम हज़रत महल अपने सिपाहियों को जमा किया और आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि मुसलसल जद्दोजहद के बावजूद भी कई हुक्मरान अंग्रेज़ों से शिकस्त खा रहे थे। आखिरकार बेगम हज़रत महल अपने सिपाही दस्तों के साथ लखनऊ से नेपाल रवाना हो गईं। उसके बाद नेपाल के राजा ने बेगम हज़रत महल और उनके बेटे बिरजेश कद्र को पनाह देने के अलावा बाकी साथियों को नेपाल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। बेगम हज़रत महल के लखनऊ छोड़ते ही अवध पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। अंग्रेज़ी हुकूमत ने हज़रत महल को माफ़ी का परवाना भेजा, लेकिन उन्होंने ग़ुलामी की फ़ज़ा में सांस लेना गवारा नहीं किया और नेपाल में ही गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हुए इंतकाल कर गईं। आखिर में देखते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक वीरान से गोशे में बेगम हज़रत महल की क़ब्र मौजूद है। ठीक है, पढ़िए और समझिए। वली अहद, हुकूमत का वारिस और नज़र बंद करना यानी कैदी बनाना। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 की जंग आज़ादी के एक मुजाहिद जिनका नाम था। बहादुर शाह ज़फ़र, आखिरी मुग़ल बादशाह। सरगर्म यानी मुस्तैद। तख्त नशीनी यानी तख्त पर बैठना। तितर बितर होना यानी बिखर जाना। गोशा यानी कोना। मादर यानी माँ। अज़्म यानी इरादा। इस्तक़लाल यानी मजबूती से कायम रहना। आइए सोचिए और बताइए के हवाले से पहला सवाल है, बेगम हज़रत महल कौन थी? जवाब है, बेगम हज़रत महल अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की बीबी थी। दूसरा सवाल है, अवध की जंग आज़ादी में औरतों का क्या हिस्सा है? जवाब, अवध की जंग आज़ादी में औरतों का मकाम बहुत बुलंद है। बेगम हज़रत महल ने औरतों का एक फ़ौजी दस्ता कायम किया और मर्दाना लिबास पहनकर मर्दों के साथ जंग की तरबियत हासिल करती। औरतें बहुत ही दिलेरी, बहादुरी, खुददारी और मजबूती के साथ कायम रहकर अंग्रेज़ों का मुकाबला करती। तीसरा सवाल है, बेगम हज़रत महल लखनऊ छोड़कर नेपाल क्यों गईं? जवाब, बेगम हज़रत महल लखनऊ के नवाब और अपने शौहर वाजिद अली शाह के नज़रबंद हो जाने के बाद बेगम हज़रत महल अवध को आज़ाद कराने के लिए औरतों का फ़ौजी दस्ता कायम किया और अंग्रेज़ों से लड़ना शुरू किया। रोज़ बरोज़ हिंदुस्तानी हुक्मरानों की शिकस्त और सल्तनत पर कब्ज़ा होने के सबब बेगम हज़रत महल को लखनऊ छोड़कर नेपाल जाना पड़ा। चौथा सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में क्यों कायम हुई थी? जवाब है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान में कायम होने का मकसद सिर्फ तिजारत करना था, लेकिन बाद में बरतानवी हुकूमत ने यहाँ मौजूद सल्तनतों को तबाह कर इसको अपने कब्ज़े में करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता अंग्रेज़ पूरे मुल्क पर हावी हो गए। आइए अब वाहिद से अल्फाज से जमा बनाते हैं। जो अल्फाज दिए गए हैं उसको मैं पहले एक बार बता दूं। बेगम, खिताब, इंतज़ाम, ऐलान, अज़्म और क़द्र। चलिए
देखिए नाज़रीन, आपसे गुजारिश और अपील भी होगी कि जो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसका मैंने लिख नहीं सका, या फिर जो भी परेशानी रही, तो उसके सबब आपसे गुजारिश होगी कि इसका जो जुमला जमा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कमेंट सेक्शन में आप जाके देखें, तो वहाँ आपको मौजूद होगा। और इसके मुतालिक अगर आपकी क्या राय बनती है वो जवाब आप कमेंट के ज़रिए से भी हमें ज़रूर दीजिएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिगर सोशल मीडिया का साइट का लिंक भी डला हुआ है, वहाँ से भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे हमें आप फॉलो करें और मज़ीद रब्ता कर सकें आप हमसे। तो आइए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, बेगम का जमा होगा बेगमात, खिताब खिताबत, इंतज़ाम इंतज़ामात, ऐलान। हालांकि मेरी समझ के मुताबिक इसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्यूरेट लिख दूंगा, लेकिन ऐलान वाहिद भी है और जमा भी होना चाहिए। देखते हैं। अज़्म अज़ाइम, क़द्र इक़दार। अगर आपको बखूबी तौर पे वाज़ह है कि इस अल्फाज जिनका मैं नहीं लिख पाया हूँ उनका जमा क्या है, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। इन लफ्ज़ों की ज़िद लिखिए। आज़ादी, ग़ुलामी, जंग, सुलह, बहादुर, बुज़दिल या डरपोक, बुलंद, पस्त, मादर, पेदर, शिकस्त, और इसका ज़िद है फ़तह। चलिए, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। जो अल्फाज है पहले वो आपको मैं पढ़ के समझा दूँ। इजाज़त, दाखिल, कब्ज़ा, फ़तह, सिपाही और मुआफ़ी। ठीक है, तो आइए अल्फाज देखते हैं। इजाज़त से, नेपाल के राजा ने बेगम हज़रत महल के फ़ौजियों को रहने की इजाज़त नहीं दी। दाखिल, अंग्रेज़ वाजिद अली को नज़रबंद करने के लिए महल में दाखिल हुए। कब्ज़ा, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ादी हासिल की। फ़तह, बेगम हज़रत महल ने अवध को फ़तह करा लिया। इसके बाद अल्फाज है। सिपाही, बहुत से हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेज़ी फ़ौज में शामिल हुए। मुआफ़ी, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी हुक्मरानों को मुआफ़ीनामा भेजा। आइए इन सवालों के जवाब देखते हैं। पहला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वाजिद अली शाह के साथ क्या सलूक किया? जवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वाजिद अली शाह के साथ बहुत बड़ा सलूक किया, माफ़ करिएगा, बहुत बुरा सलूक किया। कंपनी के नुमाइंदों ने अवध के हुकूमत का सारा इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया और नवाब वाजिद अली शाह को तख्त से उतारकर कोलकाता में नज़रबंद कर दिया। अवध पर कब्ज़ा कर सल्तनत को भी मिला लिया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अवध को आज़ाद कराने के लिए बेगम हज़रत महल ने किन लोगों से मदद ली? अवध को आज़ाद कराने के लिए बेगम हज़रत महल ने किन लोगों से मदद ली? जवाब, अवध को आज़ाद कराने के लिए बेगम हज़रत महल ने दिल्ली के ताजदार यानी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, नाना साहब पेशवा और मौलवी अहमदुल्ला शाह से मदद ली। तीसरा सवाल है, ऐसी दो मिसालें दीजिए जिनसे बेगम हज़रत महल की बहादुरी और हिब्बुल वतनी का पता चलता है। जवाब, ऐसी दो मिसालें मंदरजा झेल हैं जिनसे बेगम हज़रत महल की बहादुरी और हिब्बुल वतनी का पता चलता है। पहला, नवाब वाजिद अली शाह की नज़रबंद किए जाने के बाद बेगम हज़रत महल ने हौसला नहीं छोड़ा, बल्कि औरतों का एक फ़ौजी दस्ता तैयार किया और एक जमात तैयार की जिसमें औरतों को जासूसी के तरीक़े सिखाए जाते थे। दूसरी मिसाल, बेगम हज़रत महल ने अपने बेटे को तख्त पर बिठाया और मुल्क हिंदुस्तान के दिगर हुक्मरानों की हिमायत से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमलावर होकर महज 11 दिनों में
अवध को आज़ाद करा लिया। ये उनकी बहादुरी की सबसे बड़ी मिसाल कही जा सकती है ख़वातीन के हवाले से हिंदुस्तान की तारीख़ में। अब आइए खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से भरिए। पहला देखते हैं जुमला, हिंदुस्तान की खाली जगह जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई, तो पहली। दूसरा है जुमला, वाजिद अली शाह ने अपनी खाली जगह को हजरत महल का खिताब दिया, बीवी। तीसरे में है, नेपाल की राजधानी खाली जगह में बेगम हजरत महल की कब्र है, काठमांडू। चौथे में, कंपनी ने वाजिद अली शाह को कोलकाता में खाली जगह कर दिया, नज़रबंद। अब आइए फ़ेल मारूफ के हवाले से देखते हैं, जिसमें काम करने वाला यानी फ़ाइल, कर्ता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मौजूद हो और उसका फ़ाइल का असर किसी दूसरी चीज़ या आदमी पर पड़ता हो तो उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं। यानी फ़ाइल तो आए लेकिन उसका असर जो है किसी दूसरे पर पड़े। जैसे अहमद ने नौकर को मारा, इस जुमले में काम का असर किस पे है, तो नौकर पे है। और तो इसके हिसाब से दो मिसाल लिखने हैं, दो मिसालें यहाँ तरतीब दी गई हैं। पहला मिसाल है, अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को नज़रबंद किया। अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को नज़रबंद किया। और दूसरा है, बेगम हज़रत महल ने सिपाहियों के साथ मिलकर मुकाबला किया। सिपाहियों के साथ मिलकर मुकाबला किया। तो इस तरीके से आपने इस सबक के हवाले यानी बेगम हज़रत महल के हवाले से पहले मज़मून सुना, उसके ख़ुलासा, मुश्किल अल्फाज के माने, खाली जगहों को पुर करना, सवाल और जवाब, जुमलों में तरतीब देना, वाहिद से जमा बनाना, और इसके अलावा तमाम तर सवालात को आपने देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के ज़रिए से आप ज़रूर बताइएगा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। चूँकि हम हर जमात के मुतालिक पिछले जमात के हवाले से भी और आने वाले जमात में भी दर्जात के हिसाब से वीडियोस बना रहे हैं सिलसिलेवार, और यकीनी तौर पे बड़ी मेहनत के साथ आपके दरमियान वो वीडियोस आ रहे हैं। तो आप इसे लाइक करिए ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। और तमाम वीडियोज़ का प्ले लिस्ट भी दस्तयाब है। आप हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस पे जाके तमाम वीडियो को प्लेलिस्ट के हवाले से देख सकते हैं, जहाँ पे एक ही सेक्शन में एक सबक, एक क्लास के हिसाब से तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इस लिंक को शेयर कर दीजिए, लाइक करेंगे। अगर आपकी फिर भी किसी तरह के कोई सवाल और जवाब हैं तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो फिर इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, अलविदा, शबा खैर। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय, अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फिरोज़ा के एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर।